Good morning, everyone. Today, I'm going to discuss with you sources of information of modern period. Dear student, the term modern period refers to the recent time. The modern period did not begin same time in all part of the world. It began first in Europe around 16th century AD. But in India, the modern period began much later, around mid 18th century. My friends, as you know, history depends upon sources. So, modern period also have many sources. First one is British documents. The Britishers rule over India for almost 200 years. Government orders and official correspondence, the records of reforms like Marley Minter reforms 1909, इसमें सेपरेट इलेक्टोरल का व्यवस्था किया गया था फॉर माइनॉरिटीज के लिए. रिपोर्ट्स ऑन साइमन कमीशन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म का जो है सर्वे करने के लिए साइमन कमीशन आए थे, बट इसमें इसके कोई भी मेंबर्स भारतीय नहीं थे और इसका रिपोर्ट्स 1929 में जो है सबमिट हुआ था. द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1935 are important source of information. They tell us about the condition of people as well as administration of that time. These are well documented and preserved in archive. Archive is a place where a systematic and organized record of things are kept. Second one is books. Books are man's best friend. Many books were written and printed during this period, like Anand Math, written by Bankim Chandra Chattopadhyay. In this book, they describe about the revolt of sannyasis. My experiment with truth by महात्मा गांधी. इस किताब में महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य के बारे में बताया है. Unhappy Indians, written by Lala Rajpat, and so many books like Dada Bhai Nauroji written, Un-British Rule of India, J.L. Nehru, Jawaharlal Nehru written, Discovery of India, like that. So many books written by different authors, freedom fighters. Books also tells us about social, economic, and political condition of a period. Some biography and autobiography give an account of life and ideology of famous personality written during this period. Gandhi Smriti near Rajghat. The collection of writing of Gandhiji's are kept in Gandhi Smriti near Rajghat. Dear children, some slogan also given by our freedom fighter, and that slogan have great impact. Okay, and different time situation they said that भिन्न भिन्न समय में ये लोग भिन्न भिन्न स्लोगन्स को दिए हैं और इससे भी हिस्ट्री लिखने में मदद होती है. जैसे फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, आई शैल हैव इट, मैं इसे लेकर रहूंगा. बाल गंगाधर तिलक, द स्लोगन गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक. नेताजी सुभाष चंद्र बोस गिवन अ स्लोगन, यू गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. बच्चों,
महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में थोड़ी सी डिफरेंस है। महात्मा गांधी भीड़ जुटा लेते थे और सुभाष चंद्र बोस भीड़ में गर्मी पैदा करते थे। तो आप समझ सकते हो, एक नरम दल है, एक काफी गर्म दल है। दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है फ्रीडम स्ट्रगल में। सुभाष चंद्र बोस का एक और नारा है, दिल्ली चलो। तो लाइक दैट। अब ये स्लोगन किस परिस्थिति में दिया गया, क्यों दिया गया? महात्मा गांधी का स्लोगन है डू और डाई। तो इन सब स्लोगन के माध्यम से हिस्ट्री लिखने में मदद मिलती है हमारे फ्रीडम फाइट हमारे हिस्टोरियंस को। लेटर्स, राइटिंग स्पीचेस। Letters are also important as they help us understand a particular situation from a personal point of view. व्यक्तिगत सोच के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में पता चलती है। और they provide information about development of that takes place during that time. उस वक्त किस तरह का डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीजें हमें पता चलती है। फोर्थ वन इज, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, लेटर, राइटिंग स्पीच। नेक्स्ट वन इज न्यूज़पेपर। द लंदन टाइम्स, बॉम्बे टाइम्स, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। मतलब वर्नाकुलर मीन्स लोकल भाषा में जो प्रेस निकलती थी। लाइक बाल गंगाधर तिलक केसरी। बाल गंगाधर तिलक के न्यूज़पेपर का नाम केसरी था, मराठी लैंग्वेज में आता था। अमृत बाजार पत्रिका इन बंगाली आर फेमस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न पीरियड। डू यू नो द ब्रिटिशर्स पास वर्नाकुलर प्रेस एक्ट in 1878 to repress the anti-government writing। अब आप समझिए इसको कि जो लोकल न्यूज़पेपर छपने लगी, लेकिन उन न्यूज़पेपर पर पाबंदी लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया। और इस एक्ट के माध्यम से उनको एंटी गवर्नमेंट राइटिंग और प्रोपेगेंडा से वंचित किया गया कि आप डिफरेंट वे में आप सरकार के विरुद्ध में कोई भी चीजें नहीं छाप सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। द ब्रिटिश मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस इन रिकॉर्ड इन डॉक्यूमेंट्स। वो सारे डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में रिकॉर्ड्स को रखते थे। Administrative report of the government on tribes, caste, farmers, land revenue settlements are also very important source of information for knowing modern history। इंटरनेट और डाटाबेस। आज सभी जानते हो कि इंटरनेट का पहुंच दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी तक है। कोई भी बुक तुम इंटरनेट के माध्यम से किसी भी लाइब्रेरी में रखी हुई बुक को आज घर बैठे हम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ओल्ड बिल्डिंग, आर्टिफैक्ट एंड पीपुल्स। द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ ओल्ड बिल्डिंग। तुम देखे होगे यूरोपियन स्टाइल ऑफ बिल्डिंग्स, जिसमें रेड और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन होता था और वो बड़ी बड़ी खिड़कियों बनाते थे, कांच की खिड़कियां। ठीक है, एक अलग ढंग का पैटर्न था, आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ मेकिंग बिल्डिंग था ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। आज हम वो बिल्डिंग जब कभी हमारी नजरों के सामने आता है तो हम देख करके समझ जाते हैं कि ये कॉलोनियल पीरियड की बिल्डिंग है। कुछ रेलवे स्टेशन उसी आधार पर बनी हुई है, आज भी हमारे पास है। आर्टिफैक्ट पीपुल ऑफ दैट पीरियड ऑल्सो टेल अस द टेल्स ऑफ द पास्ट। पास्ट की कुछ कहानियों को बयां करते हैं। Many peoples who participates in freedom struggle and saw the important changes share their experience which throw lights on the
लाइफ ऑफ पीपुल एंड द कंडीशन दैट एग्जिस्टेड, उस वक्त किस कंडीशन में वो रहते थे, वो सारी चीजों को ट्रांसफर करते थे। अब बहुत दिन नहीं हुआ है बच्चों ब्रिटिशर्स को यहाँ से गए हुए, 70 ईयर्स हुआ है। तो हम लोग भी अपने दादा नानी से उनके बारे में कुछ कहानी सुने हुए हैं। तो ये सारी कुछ बिल्डिंग्स के पिक्चर्स आपके पास दिया हुआ है। विक्टोरिया टर्माइनस मुंबई में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए 1877 के आसपास बनाई गई थी। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, विक्टोरिया एक ब्रिटेन की क्वीन थी जो बहुत लंबे समय तक वहां शासन की, अप्रॉक्स 52 ईयर्स ब्रिटेन में वो शासन की। राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली, राष्ट्रपति भवन जो वर्साई का प्लेस था अब राष्ट्रपति भवन है, न्यू दिल्ली में है। तो इन सब चीजों को देखने के बाद पता चलती है, हिस्ट्री लिखने में सुविधा होती है।